Okay, so I am not going to take much time because these are the very basic things, and I think you people already have the schedule. So, what is the today's topic? Today's topic is the hand washing and needle stick injury. So, though this is a very basic kind of thing, but still there are some kind of technical things involved in the hand washing and needle stick injury. Why this topic is important at this level at the foundation course? Because now you are going to expose to the hospital environment, okay, where a lot of infections comes from the patient and lot of infection from you go to the patient. So I'm going to start this hand washing and needle stick injury. And first, I wanted to give my introduction. I am a Dr. Jaiswal. Most commonly known me as a Dr. Jaiswal. I am a pathologist. I did my MD in pathology. I am taking care of especially hematology and blood center and transplant immunology lab, flow cytometry lab, and few hematology molecular labs. I am a part of medical education unit, and most important, I have given this responsibility of hand wash and needle stick injury because this is a very important and very pertinent topic for you people. Because nowadays क्या होता है ना, पहले तो आप लोग की पोस्टिंग कब से लगती थी? थर्ड ईयर से लगती थी. अभी आप लोग का अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर होने लगा होगा. अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा है ना, तो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, क्या चीज़ें आपको प्रिवेंट करनी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. दीज आर द सर्टेन डिक्टम्स. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड अगर आप अपने एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट अगर उसको इम्बाइब कर लोगे लाइफ लॉन्ग के लिए, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी. ओके, जैसे एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है. प्रोफेशनल बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी लॉन्ग जर्नी. ओके, यू आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी लॉन्ग जर्नी, तो कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है, एंड एवरीथिंग इज interrelated. Okay, so just hand wash and needle stick injury during COVID pandemic, you are also aware what was the importance of hand washing. Just because of hand washing, this is the only measure जिससे हम बहुत सी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हैंड वॉशिंग का आप लोग को कोई क्राइटेरिया मालूम है कि क्या हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, हमको कैसे वॉश 7 ये कहीं आप लोग को बताया है या फिर कहीं आपके करिकुलम में था? ये हैंड वॉश किसने बता दिया है? पहले किसने बताया? यहीं पे बताया है फाउंडेशन क्लास में. तो ये रिपीट तो नहीं हो रही है क्लास? हाँ, रिपीट है. नहीं, हो सकता हो रिपीट हो. अभी तो बहुत सी चीजें रिपीट होंगी. अभी तो बार बार, मतलब एक क्लास को 4 बार 5 बार रिपीट होगी. तो रिपीट है, तो इसमें रिपीट क्या? जस्ट आई वांटेड टू नो सो दैट आई कैन बाईपास. क्या रिपीट है इसमें हैंड वॉश में? सॉरी, 7 स्टेप्स जो है. ओके, प्लीज. एनीवे, कोई नहीं, आप एक बार फिर से जान लो हैंड वॉश का क्या है. और निडल स्टिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी, आर यू अवेयर ऑफ निडल स्टिक इंजरी और नॉट? ओके, एनीवे, so basically hand wash and needle stick injury, this is the importance of awareness, you can say, rather is the awareness kind of talk कि जहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. एंड आई थिंक आइडेंटिफाई हु शुड प्रैक्टिस हैंड हाइजीन. किसको किसको हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? किसको किसको करनी चाहिए? सभी को. Especially when I am talking about hospital setting, when I am talking about in a medical scenario, that is the one of the subjective things. sabhi ko, that is a good thing. But what is the most important part? अगर I am asking you कि कौन कौन से stakeholders होते हैं patient के patient care में? Doctors, nursing staff, paramedical staff and और नर्सिंग स्टाफ में आ गया, और पेशेंट अटेंडेंट, पेशेंट रिलेटिव. ओके, so these are the most common source of
प्लीज लास्ट रो आप लोग आगे आ जाइए. और discipline is the one of the very important thing. अगर if you are not able to sit properly, okay, so you can leave the class and I will give you attendance. Okay, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ. What is your name? Ankur Bukkal. So basically when we are talking about these hand washing and needle injury, तो अभी ये क्वेश्चन जो है ना आपके शॉर्ट नोट्स में भी काफी आने लगे हैं. तो जस्ट यू फोकस ऑन दिस कि व्हाट आर द दीज टर्मिनोलॉजी. Might be you are aware of, you already aware of all these things, but there are some technicality and some point. If I am asking कि needleistic injury है, तो needleistic injury का what is the most common source? needleistic injury तो क्या हो सकता है? होने दो. टेटनस हो गया तो टेटनस का तो आपने वैक्सीन लिया, वो लगा होगा ना, वैक्सीन लगा होगा ना. यस, एड्स एंड HIV आर द टू डिफरेंट. Hepatitis B and HIV. What is the difference between AIDS and HIV? AIDS is the syndrome. AIDS is not an infection. Okay. So just as a medical person, when you are discussing any important subject, so just you beware कि हम बोल क्या रहे हैं. ठीक है? So AIDS is not a infection. AIDS is the syndrome, which is a resultant of HIV infection. And HIV1 and HIV2, which is the most commonest cause of HIV here? HIV1 or 2? HIV1 is the more common. Okay. HIV2 cases are not very much reported, but HIV1 is the more common. Okay. Identify where hand hygiene practice should take place. Explain why hand hygiene is important. These are the important things we already covered. How do we measure up when it comes to the hand hygiene? And most healthcare providers believe they are already practicing. This is the misconception. कई बार हमको पता होता है कि हम already hand wash करते हैं, but that is also not the proper method. And this is a question for you. Can you suggest me out of these 4 options, how many are doing hand washing? This question taken from some article, published article. 10% are aware. 10% are doing. Only 10% करते हैं. बाकी 90% नहीं करते. Proper नहीं करते. Any other answer from this side? Okay. 95. So answer is, this is the 40%. According to this study, actual hand hygiene compliance among healthcare providers was less than 40%. It is a more than, मतलब 50% से ज़्यादा हो गया. 50% से ज़्यादा लोग comply ही नहीं करते कि उनको hand washing करनी कैसे है या करते कैसे हैं. And this is the already published article. Then who should practice hand hygiene? Hand hygiene is important not only for healthcare providers. Everyone needs to be practicing appropriate and effective hand hygiene regardless of work setting. This is the universal thing. सबको करनी चाहिए. But when I am talking about the medical setting, so especially doctors, nursing staff, patient attendant, these are the very important points. Or you can say in other words, those who are coming in the contact of the patient. ऐसे वो सारे individuals जो पेशेंट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या एटमॉस्फेयर के भी कांटेक्ट में आते हैं. अगर हम बात करें, एक तो जनरल वार्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे देयर इज हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेशल सेटिंग, जस्ट लाइक ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेटिंग. ओके, तो वहाँ पर तो आपको यू हैव टू गो थ्रू द मेनी बैरियर्स. तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होएगा तो क्या होएगा, आपका ट्रांसप्लांट का आउटकम फेल हो जाएगा. तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम किस सेटिंग में, जनरल वार्ड में हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट BMT में अगर हो गया तो इट विल क्रिएट लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ग्राफ्ट.
these are the already, these are the important steps include cleaning hands with soap and water or alcohol based hand rub. Alcohol based hand rub की what is the importance? Why alcohol based? बैक्टीसाइडल होते हैं, वैलिसाइडल होते हैं, तो इसलिए वी आर यूजिंग हाउ मेनी परसेंट का कुछ परसेंट का आइडिया है कितने परसेंट अल्कोहल यूज करना चाहिए? एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज करोगे तो क्या होएगा? स्किन आपकी खराब हो सकती है, ठीक है। तो आइडियली कितने परसेंट अल्कोहल यूज करते हैं यहाँ पर? 70% अल्कोहल नॉर्मली यूज करते हैं, स्पेशली फॉर व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर एंड एनी इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है, जहाँ पे इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। These are the busy healthcare providers need access to hand hygiene products where patient or patient environment contact is taking place. Hand hygiene is important in all work settings, including acute care, long-term care facilities, community and corporate sites. And providing alcohol-based hand rub at the point of care is an important system support to improve hand hygiene. And this enables healthcare providers to quickly and easily fulfill the 5, these are the moments, but the other 7 steps where we can do proper hand washing. These are the points of care, okay, at the time of patient and the healthcare providers and care involved in contact, or in other words, any person who is coming directly or indirectly in contact with the patient, he or she must do proper hand washing practice before touching the patient. When do you perform hand hygiene? Okay, so these are the moments where you need to perform hand wash before initial patient or patient environment contact. Before अगर आप किसी patient के environment में जा रहे हो, आप पहले वहाँ पे करके जाओ. Before aseptic or cleaning procedure, if you need to perform any kind of procedure, जहाँ पे आपको लगता है incision लगाना है या आपको कोई भी ऐसा aseptic क्या कहते हैं activity करनी है, then you have to take care of hand washing. And after body fluid exposure risk, जहाँ पे आपको लगता है कोई भी body fluid का exposure हो रहा है, okay, body fluid कई बार आप पेरिकार्डियल सिंथेसिस करोगे या फिर पूरा फ्लूइड टैप करोगे, तो वहाँ पे कई बार बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो, देन यू नीड टू बी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर इसलिए कि आप उसको कोई इन्फेक्शन नहीं दो, और आफ्टर इसलिए कि आप पेशेंट से कोई इन्फेक्शन लेकर कैरी ना करो. एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट विद द पेशेंट सराउंडिंग. एंड this is the dictum. Remember, hand hygiene prevents carrying germs into and out of the patient's environment. These are the diagrammatic representation of what we earlier said. And these are the posters. Okay, these are the posters of our university, our medical college. And we are putting at different points. Before touching a patient, just to remind again and again. ये सारे डिस्प्ले में लगे हुए हैं. अगर आपको कहीं पे भी लगता है, जस्ट यू गो एंड विजिट. जब आप आईसीयू में जाते हो या कहीं ओटी में जाते हो या फिर कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पर इन्फेक्शन प्रोन जोन है, तो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन. एंड दीज आर द स्टेप्स, 7 important steps, and I think you already aware of these steps. Okay, are you already aware or not? ये जगह जगह बने भी हुए हैं इसके पोस्टर्स. अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन लगता है तो यू कैन रेफर दैट पोस्टर. नाउ निडल स्टिक इंजरी. एवरी निडल स्टिक इंजरी एंड शार्प इंजरी. निडल स्टिक इंजरी में जब आप स्टिचिंग करोगे या इमरजेंसी में कोई आप सूचरिंग करोगे, तो दैट आल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द निडल स्टिक इंजरी. निडल स्टिक इंजरी का सिर्फ यही नहीं है कि आपको निडल से स्टिक हो. एनी शार्प इंजरी during any procedure, during any surgical intervention, that also comes into the purview of needle stick injury. अगर suppose करो आपको needle stick होती है and you are not aware of the status of the patient, what will you do? These are the very important things. Just you concentrate yourself, because कई moment आएंगे जहाँ पर आपको needle stick injury होएगी, आप avoid नहीं कर पाओगे, but आपको करना क्या है, that is important. अगर आपको कोई निडल स्टिक इंजरी होती है, आप क्या करोगे?
I am talking in reference to patient hospital setting. I am not talking in reference to outside world. क्या करोगे आप बेटा? अपना इधर से नाम और रोल नंबर इधर से क्रिएट कर नेम एंड रोल नंबर. अगर आपको किसी भी अननोन पेशेंट से निडल स्टिक होती है, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? जो आपको मालूम है वो बता दो. कोई इट इज नॉट योर एग्जाम. आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप 100% सही बताओगे. आप अपनी लैंग्वेज में बताओ कि क्या करोगे. हैंड को फ्रिक्वेंटली वॉश करोगे और किसको बताओगे? वो सर कौन से हैं जिसको बताओगे? उसको भी बताना, उसका भी ऑर्गेनोग्राम है ना. किसको आपको किसको बताओगे? किसको इन्फॉर्म करोगे? सॉरी, medical officer. When you are working in the hospital, there is a infection control officer. कुछ टेक्निकल थिंग्स हैं, यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट इज द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर. ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल आपका हॉस्पिटल NABH से एक्रेडिटेड भी है. अगर NABH से नहीं भी हो तो अभी ऐसी सिस्टम है कि जो हॉस्पिटल ये निडल स्टिक इंजरी है, वी हैव टू रिपोर्ट प्रॉपरली बिकॉज इट मे कॉज इन्फेक्शन in terms of HIV infection. अच्छा, निडल स्टिक इंजरी से कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? एक तो हेपेटाइटिस बी बताया था, एक HIV बताया था, और क्या हो सकते हैं? गोनोरिया, और बताओ. यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबव 18 ईयर्स. सारे 18 ईयर्स से अबव है. आप लोगों ने ब्लड कितनी बार डोनेट किया है? 6 टाइम किया है. तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? उसके पीछे लॉजिक है. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? नो, जिस कंटेस्ट में पूछ रहा हूं, इतने लोगों में सिर्फ एक लोगों ने ब्लड डोनेट किया है. आपने भी किया है. तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या क्या टेस्ट होते हैं? इन अदर वर्ड, ऐसे कौन से इन्फेक्शन हैं जो ब्लड से ट्रांसमिट हो सकते हैं? जो इन्फेक्शन ब्लड से ट्रांसमिट हो सकते हैं तो वो निडल स्टिक इंजरी से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी फ्लूइड ही तो कांटेक्ट में आएगा. तो कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? दो तो आपने बता दिया. ओके, नॉर्मली व्हेन यू आर गोइंग टू डोनेट योर ब्लड, तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज अ मैंडेटरी, करने ही होते हैं. एक तो आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, दूसरा HIV हो गया, तीसरा हेपेटाइटिस सी एंड सिफिलिस and malaria. Okay, so these are the 5 important mandatory tests we need to be performed. So normally when we are talking about the needle stick injury, तो needle stick injury से क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी. These are the common. Okay, and out of these hepatitis B is the one of the most you can say infectivity जो है उसकी सबसे ज्यादा होती है, HIV से भी ज्यादा होती है. हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी अगर आपको ट्रांसमिट हो गया तो क्या हो सकता है? यस, तो कौन सी सेलिब्रिटी जिसको हेपेटाइटिस बी है? वाई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था इस वजह से ना. वो उसको क्या क्या डिजीजेज कैन यू टेल? उसको कई बॉक्स ऑफ ऑल डिजीजेज. उसको और क्या क्या डिजीजेज है? हेपेटाइटिस बी है और मिस्टीनिया ग्रेविस और थैलेसीमिया टेट. थैलेसीमिया टेट इज नॉट ए डिजीज, थैलेसीमिया टेट भी है. ठीक है, हेपेटाइटिस बी का कैरियर, हेपेटाइटिस बी का तो उसका फुल फ्लैशेड इन्फेक्शन नहीं है. तो बेसिकली
निडलिस्टिक इंजरी जब अगर आपको होएगी तो फर्स्ट आप तो एक तो रिपोर्ट करोगे फर्स्ट यू मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जिससे आपको निडलिस्टिक हुई है उसका क्या स्टेटस है भाई। अगर सपोज करो ही इज अ पॉजिटिव फॉर एनी काइंड ऑफ दिस HIV और तो ये इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर उसको कोई इन्फेक्शन नहीं देन ये इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो in the case of any kind of needle-stick injury and especially you all people are more prone vulnerable to the needle-stick injury in the medical care। जब भी आप मेडिकल सेटिंग में आते हैं तो जो भी मेडिकल पर्सनल है दे आर मोर प्रोन फॉर द needle-stick injury, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप क्या कहते हैं इंजेक्ट कर रहे होगे, कहीं आप कोई प्रोसीजर कर रहे होगे, या कहीं आपको इवन ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन ये स्लिप होगी तो आपको भी लग सकती है। ठीक है, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको उस हिसाब से आपको अवेयर रहना है कि हमको किसको इन्फॉर्म करना है और क्या करना है। बेसिकली दीज आर द डाटा वेयर यू आर मोर प्रोन फॉर द needle-stick इंजरी। 39% पेशेंट रूम में, ऑपरेटिंग रूम में 27%। दीज आर द ओनली डाटा। बट सपोज करो अगर आप लैब में needle-stick इंजरी होती है तो आपके लिए तो 100% है ना। These are the data for the larger population. But for you, if you are getting encounter with the sharp injuries in the lab, so it is 100% for you. So just you remember these are the data जहाँ पे आप prone हो सकते हैं, but it is always better to follow all the universal precautions. All the universal precautions when we are going to deal with the any kind of procedure or activity. These are the name of the devices which are more prone for the needle-stick injury, especially disposable syringe. It is one of the most important culprits. Suture needles during suturing, wing still needles, that is the butterfly needles, intravenous catheter stellate, phlebotomy needles, scalpels. These are the common instruments by which you may get encountered with the needle-stick or sharp-stick injury. Again, this is already displayed at various areas where if you are encountered with the needle-stick injury, what you need to do? Do not squeeze. Do not squeeze or suck the injury site. This is the first thing. Second thing, wash the area with soap and plenty of water. It is better कि आप जो रनिंग टैप वाटर होता है ना, आप उसके नीचे आप कर दें थोड़ा सा ब्लड वॉश, क्योंकि जब आप स्क्वीज करते हो तो देयर इज लॉट ऑफ चांसेस इन्फ्लक्स हो जाएगा ब्लड का, इन्फेक्शन का। बट जब आप ये रनिंग टैप वाटर में करते हैं तो दीज आर द सर्टेन मेजर्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपने रनिंग वाटर से कर लिया और कोई हेपेटाइटिस HIV से है तो आपका इन्फेक्शन खत्म, ये स्टिल चांसेस। इन्फॉर्म द एरिया, ये DNS इज द जो भी आपके वहाँ पे डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होंगे, आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए टाइम टाइम पे डिस्प्ले होते रहते हैं, जहाँ पे अगर आप जो भी इम्पोर्टेंट एरिया में जाओगे वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का नंबर लिखा होगा। अगर नंबर नहीं लिखा होगा जस्ट यू रीच टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, he or she will guide you कि आपको करना क्या है। Then there is some incident form. Incident form में आपको सारी चीजें भरनी पड़ेंगी। Incident form and send these are the these services are free for student, मतलब जो भी medical personnel हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको needle-stick इंजरी हो गई, कई बार इतना अप्रीहेंसिव मोमेंट होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स तो शाय होते बताते ही नहीं। ठीक है, तो डोंट बी शाय। अगर आप कभी भी HIV से इन्फेक्ट हो या कभी भी हेपेटाइटिस B से इन्फेक्ट हो, ठीक है, आप उसको शेयर करो जो भी DNS है या जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, बिकॉज स्टिल देयर इज चांसेस कि आप इसकी जो भी मेडिसिन होंगी, पहले तो हम जब बेस लाइन आपका करेंगे तो साथ पेशेंट का भी करेंगे। इट इज नॉट, ऐसा कई बार हुआ है कि पता चलता है कि मेरे को HIV का इन्फेक्शन हो गया। HIV बहुत से रेजिडेंटों की मैं बता रहा हूँ, बहुत से रेजिडेंट आते हैं कि I got needle-stick injury with the HIV patient. Okay, तो
उनसे पूछा था कि हाउ यू गोइंग टू नो कि ही और शी इज HIV पॉजिटिव। तो कहीं उसकी रिपोर्ट में कई बार तरह तरह की रिपोर्टें होती है, इसमें मेंशन होता है कि बॉर्डर लाइन या वो। तो हम उसी समय क्या करते हैं कि पहले तो हम पेशेंट का बेस लाइन अपनी सेटिंग में करते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मेथोडोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। तो उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना होता है कि आगे हमको करना क्या है। एंड आइडेंटिफाइज सोर्सेज, ये आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि incident form and send baseline samples, then identify source person from healthcare worker, and if source identified, and baseline investigation of source after taking consent, then injured staff report to emergency, जो भी staff होगा वो emergency में बताएगा, and send information to infection control department, then केस टू रिव्यूड बाय द इमरजेंसी डॉक्टर, जो भी आपका इमरजेंसी डॉक्टर वो आपके पूरे केस को रिव्यू करेगा एज पर द गाइडलाइन फॉर द ट्रीटमेंट मोडेलिटी। देन ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एज पर द गाइडलाइन, इमरजेंसी डॉक्टर टू एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन, क्योंकि ये भी है कि अगर सपोज तो पेशेंट वाकई में HIV है, नॉन HIV है और आपका अच्छा सा स्टिक इंजरी हो गया है, तो वी शुड नॉट वेट फॉर द योर बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन। ओके, we need to start immediate treatment, okay, as a preventive measure, as a prophylactic measure. So we need to go according to these protocols. Then we have to do lab test and follow up. इसमें सारी चीजें आपको हैं, and antiretroviral therapy for HIV and HBV के लिए I think most of the students are vaccinated with the hepatitis B, सभी लोग होंगे। तो हेपेटाइटिस बी का तो प्रिवेंशन हो जाए, बट हेपेटाइटिस सी और नॉर्मली ये आपका HIV ये स्टिल कॉजिंग प्रॉब्लम। the risk of zero conversion to sharp injury from a known positive source, the maximum for the hepatitis B, and HCV is less than 2% and minimum is for HIV. And needle stick injury, what we should do: avoid NSE, and after NSI, always discard sharps in a puncture proof container, dispose it off. Vaccination against HBV, that is a universal precaution, and observe universal precaution. And this is the acronym of avoid. Okay, always discard sharp, vaccination against hepatitis B. O for observe universal precaution. I for immediately dispose of sharps after use, and D, don't ever recap a used needle. Never use to recap the needle. That is one of the most at this point there is high chances of needle stick injury when you are recapping the needle. Nowadays there is a container where you need to just put the waste. You don't need to be recapped. And do wash with soap and water. Inform your supervisor. Report to emergency department or infection control officer and fill the incident report format. Do not panic. Do not squeeze the injured area. Do not put the injured area in mouth, and do not use alcohol or beta. Again, this is a very important. कई बार हम लगा लेते हैं ना बीटाडीन, और अगर आपको needle stick इंजरी किसी अननोन सोर्स से हुई है तो यू शुड नॉट यूज अल्कोहल और बीटाडीन after the injury. This is the needle stick injury post exposure procedure form, जहाँ पर आपका नेम, एज, जेंडर, डेट, कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे हम आपकी सारी डिटेल एज ए बेस लाइन भरी जाएगी। ठीक है, दीज आर द फर्दर फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का जो रिजल्ट आएगा वो, फिर डेट ऑफ रिपोर्टिंग, इमीडिएट स्टेप्स टेकन, HBV immunization stage. So these are the complete form for the incident reporting. This is all about needle stick injury.